The topic for today's discussion is the different operators that we used in the SQL, or the functions that we used in SQL for performing some kind of aggregation or other tasks. Some of these operators are already known to you because we have discussed these in the different programming languages that you have done. So we will just run through these some of the topics. The first set of arithmetic operators that we have is the arithmetic operators: plus, minus, division, multiplication, and modulus. Modulus is used to find the remainder. Next is bitwise operators. These are the operators that are used to perform operations on individual bits of a value. There are three types of operators: AND, OR, and exclusive OR. Next is relational operators, also known as comparison operators. There are six types of operators you are already aware of, but only thing that you need to keep in mind is that the symbols are slightly different. For example, not equal to symbol is different from what you have been using, and also the equal to symbol is different. It is similar to an assignment operator, so you can just use a single equal to for the relational equal to. The next is compound operators. In C programming language, you have used shorthand operators. So this is just that compound operators. जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, A multiplied by equal to B. What does this actually stands for? This stands for A is equals to A multiplied by B. So I hope this is very clear to you. This is A multiplied equal to B, which is also known as a shorthand operator, is equal to A is equals to A multiplied by B. Then we have a set of logical operators that we need to see. Generally, in any programming languages, we see three types of logical operators: and, or, and not. Here we will see some addition as well, like between, like, in, exists, all, and any. So we will see some of these operators in this lecture today. The first one is the AND operator. AND operator जनरली दिया जाता है जहां पर आप दो कंडीशंस को यूज कर रहे हैं, and the outcome of both the conditions should be true, only then the final output is also true. नीचे दिया हुआ एग्जाम्पल हम अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं. यहाँ पर लिखा है कि आपको कुछ एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट करना है फ्रॉम अ गिवन टेबल, और साथ में वेयर क्लॉज को यूज किया गया है, यानी हम लोग कुछ कंडीशंस लगाएंगे. लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कंडीशन 1, 2 एंड 3 तीन कंडीशंस लगाई हैं, और तीनों कंडीशंस आपस में कंजक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ एंड कंडीशन. इसका मतलब ये है दैट the final output of the condition will be true only if all conditions are true. इसका मतलब क्या है? सिर्फ वही रिकॉर्ड्स जो हैं वो सेलेक्ट होंगे जो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, अदरवाइज द रिकॉर्ड्स विल बी रिजेक्टेड. So let's move further down. The second type of operator that we have is called the OR operator. OR operator is completely opposite to the AND operator. The OR operator means that the final output is true if any one of the conditions is true. अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, फिर से सिमिलर कमांड है. इन एट्रीब्यूट्स को हमें सेलेक्ट करना है, इस टेबल में से सेलेक्ट करना है, साथ में हमने लगाया है वेयर क्लॉज, और तीन कंडीशंस यहाँ पर स्पेसिफाई की हैं दैट आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ OR ऑपरेटर. इसका मतलब क्या है? द फाइनल आउटपुट ऑफ द कंडीशन इज ट्रू इफ any single condition is true.
यानी अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो वाला रिकॉर्ड जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर सारी की सारी कंडीशंस फॉल्स हैं देन द रिकॉर्ड विल नॉट बी सेलेक्टेड। So let's move further down to see our next operator. The next is not operator. इसको हम लोग negation या inverse भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? Because this is only used to reverse the outcome. जिस तरह से यहाँ पर फिर से सेम कमांड है, लेकिन यहाँ पर वेयर क्लॉज के साथ एक ही कंडीशन दी गई है और उस कंडीशन के आगे नॉट लगाया गया है। इसका मतलब क्या है? दैट इफ द कंडीशन रिटर्न्स फॉल्स, अगर आपका कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगा देन ओनली द आउटपुट विल बी ट्रू। दैट मीन्स इस कंडीशन का फॉल्स रिटर्न करना जरूरी है, देन ओनली द tuple will be or the record will be selected, otherwise the record will be rejected. तो करना क्या है? जो भी कंडीशन आती है उसके आगे नॉट लगाने का मतलब ये है कि वो उसको रिवर्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू एंड ट्रू को फॉल्स कर देगा। सो लेट्स मूव फर्दर। द नेक्स्ट इज बिटवीन। कई बार क्या होता है कि आप दो कंडीशंस लगाते हैं, दैट द वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन समथिंग एंड लेस देन समथिंग। सो बेसिकली आप क्या ढूंढ रहे हैं? आप ढूंढ रहे हैं द वैल्यू इन बिटवीन टू वैल्यूज। तो उसके लिए डबल कंडीशन लगाने की बजाय आप बिटवीन ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी इन दिस एग्जांपल, आप कुछ कॉलम्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं इस टेबल में से। कंडीशन लगाई गई है वेयर, एक कॉलम के ऊपर कंडीशन लगाई गई है और कौन सा ऑपरेटर यूज किया गया है? बिटवीन ऑपरेटर को हमने यूज किया है। तो ये करेगा क्या? सिर्फ वही रोज को या रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट किया जाएगा जिनकी वैल्यू इन दो वैल्यूज के बिटवीन लाई करती है। इफ देयर इज एनी वैल्यू दैट डज नॉट लाई बिटवीन दीज टू वैल्यूज देन दैट विल बी रिजेक्टेड। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बिटवीन के बिना ये नहीं कर सकते हैं, हम लोग बिटवीन के बिना भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको दो कंडीशंस अलग अलग लगानी पड़ेंगी और एंड ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो बिटवीन मेक्स इट अ लिटिल इजी। सो नेक्स्ट इज लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर का अगर मुझे आपको एक अच्छा एग्जांपल देना हो, तो जब आप सर्च करते हैं किसी भी आइटम को तो उसमें लाइक ऑपरेटर ही यूज होता है। आप कोई भी सर्चिंग करते हैं तो आप उसमें एक तरह का एक क्राइटेरिया बना सकते हैं कि जब आप किसी फाइल को सर्च कर रहे हैं, किसी पर्सन को सर्च कर रहे हैं इन फेसबुक या कोई भी है, तो आप कौन सा क्राइटेरिया जो है वो फॉलो करेंगे। तो लाइक ऑपरेटर के अंदर अगर आप लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं तो उसके साथ आप दो वाइल्ड कार्ड्स इन कंजंक्शन टू दैट यूज कर सकते हैं। एक है आपका परसेंटेज सिंबल और एक है आपका अंडरस्कोर सिंबल। परसेंटेज सिंबल क्या होता है कि इट मैचेस जीरो और मोर करेक्टर्स, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि हाउ मेनी करेक्टर्स आते हैं। जहां पर एग्जैक्टली वन मैच करना हो तो आपको अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इफ यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग दैट एंड्स विद RE, I repeat, if you are searching for something that ends with RE, then you can use this. इसका मतलब क्या है कि परसेंटेज का मतलब क्या है कि do not bother about what it is, but it should end with RE. The second thing is I want to search for something that starts with RE and it might end with anything. I just want that the thing should start with RE. The third one is that I want that the content should include RE, चाहे वो स्टार्ट में हो, चाहे वो मिडल में हो, चाहे वो एंड में हो, तो I can use this, isn't it? Now the next one is underscore. What does this underscore means? आप इसको ध्यान से देखिए, underscore Q followed by percentage. परसेंटेज का मीनिंग आपको मालूम ही है, अंडरस्कोर Q का मतलब ये है that
the character, second character should be Q. Second character of the string should be Q. It can start with anything, it can end with anything, but the second character should be Q. If I want exactly a character with 3 length, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं. अब परसेंटेज का मीनिंग तो मुझे मालूम है, परसेंटेज का मीनिंग है एनीथिंग, लेकिन एनीथिंग फॉर अ सिंगल कैरेक्टर, नॉट फॉर ऑल कैरेक्टर्स. जैसे मैंने यहां पर यूज किया था, तो परसेंटेज मींस एनीथिंग, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, बट इट शुड एंड विद आर ई. इसका मतलब क्या है, अगर मैं बात करता हूं OPARE, तो ये इसके साथ मैच कर जाएगा. लेकिन अगर मैं अंडरस्कोर लगाकर परसेंटेज और RE कर देता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि इट सिंगल कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, टू बिगिन विद इट शुड फॉलो विद RE. इसमें OPARE रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि OPA स्टैंड्स फॉर 3 कैरेक्टर्स. और लेकिन मैंने कंडीशन लगाई है कि सिंगल कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है एंड विद RE, तो इसको कौन एक्सेप्ट कर सकता है, जैसे QRE, ये एक्सेप्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये सिंगल कैरेक्टर है, कुछ भी हो सकता है, एंड इट इज एंडिंग विद RE. तो दिस इज हाउ आई कैन यूज द लाइक ऑपरेटर. लाइक ऑपरेटर यूज करने के लिए आप वेयर क्लॉज लगा सकते हैं. जैसे आपने कोई भी कॉलम सेलेक्ट करना हो किसी भी टेबल में से, एंड देन यू फॉलो विद द पैटर्न कॉल्ड लाइक. आप बताएंगे कि कौन सी कॉलम की वैल्यू के ऊपर लाइक पैटर्न लगाना है. अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे शायद. आई होप कि आपको समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल जरूर दूंगा आपको. यहाँ पर अगर मैं लिखता हूं, एक कंडीशन लगा देते हैं, उस कंडीशन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. जैसे मैं लिख देता हूं, वेयर क्लॉज लगा देता हूं, वेयर कस्टमर नेम, वेयर कस्टमर नेम लाइक. तो लाइक क्या, लाइक वी स्टार. इसका मतलब क्या है, दैट द कस्टमर नेम शुड स्टार्ट विद वी फॉलोड बाय एनी वैल्यू. स्टार वी मीन्स स्टार्टिंग विद any value, but it should end with V. Percentage and percentage, it means the customer name should include and. कहां पर, at any position, starting, beginning और ending. Underscore Q followed by star, इसका मतलब क्या है, that the second position पर क्या आना चाहिए, Q, उसके अलावा जहां पर जो मर्जी आए. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ये बताता है कि इट शुड स्टार्ट विद यू, यानी ये यू से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन इसके बाद 2 अंडरस्कोर यूज किए हैं. दैट मींस इट्स मैक्सिमम लेंथ कैन बी 3 कैरेक्टर्स. इट शुड स्टार्ट विद यू, मैक्सिमम लेंथ शुड बी 3 कैरेक्टर्स, यानी 2 और कैरेक्टर्स आ सकते हैं. और वो 2 कैरेक्टर्स कौन से होंगे, परसेंटेज एंड परसेंटेज मींस कैन बी एनीथिंग. दैट मींस ये वाली कंडीशन ये बताती है कि आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट all strings that start with u and should be of maximum 3 character length. ये लास्ट वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, m स्टार a. m परसेंटेज है, इसका मतलब क्या है कि इट शुड स्टार्ट विद m, इट शुड एंड विद a, बीच में किसी भी लेंथ का कुछ भी आ सकता है. सो दैट इज द एंड ऑफ द लाइक ऑपरेशन. सर और लास्ट में समझ नहीं आया. कौन सा समझ नहीं आया आपको, लास्ट सेकंड यू यू वाला. वाला. Okay, okay, okay. You can unmute yourself. You can mute yourself. I will explain it again. Okay, second last उनको समझ में नहीं आया है, तो इसको दोबारा से हम देख लेते हैं. U अंडरस्कोर, अंडरस्कोर के बाद क्या है, परसेंटेज, एंड अंडरस्कोर के बाद क्या है, परसेंटेज. यहाँ पर इकट्ठा दिया हुआ था, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया है. तो पहला है U, दूसरा है अंडरस्कोर परसेंटेज, और तीसरा है अंडरस्कोर परसेंटेज. अब इन तीनों को अलग अलग से समझने की कोशिश करते हैं. तो पहला है यू, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इट शुड स्टार्ट विद यू. सेकंड इज कि अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंगल कैरेक्टर.
कंडीशन लगा रहा हूं सिंगल कैरेक्टर के ऊपर। एंड व्हाट इज द कंडीशन? वो कुछ भी हो सकता है, दैट मीन्स एनीथिंग। थर्ड वन इज अंडरस्कोर परसेंटेज। मैं फिर से कंडीशन लगा रहा हूं सिंगल कैरेक्टर के ऊपर, वो होना क्या चाहिए? परसेंटेज मीन्स एनीथिंग, दैट इज इट। इसका मतलब क्या है? इट शुड एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग विच इज ऑफ 3 कैरेक्टर्स लॉन्ग एंड इट शुड स्टार्ट विद यू। अब मैं इसी का एक और वेरिएशन दे देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यू अंडरस्कोर परसेंटेज, यहां पर मैंने लगा दिया है। एंड देन यू में से यहां पर आ गया एस फॉलोड बाय परसेंटेज। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है मैंने, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहला करेक्टर क्या है? यू। बहुत सिंपल है, दैट मीन्स इट शुड स्टार्ट विद यू, फॉलोड बाय अ सिंगल करेक्टर। कंडीशन लगाई है मैंने, सिंगल करेक्टर के ऊपर कंडीशन लगाई है बिकॉज अंडरस्कोर मेंशन किया है। वो क्या होना चाहिए? परसेंटेज, दैट मीन्स वो कुछ भी हो सकता है। द थर्ड इज एस, इट शुड बी एस followed by percentage means it can be anything. So now what it will accept? It will accept any string that starts with you और उसका थर्ड करेक्टर s होना चाहिए followed by anything. I hope that this is clear to you and we can continue with our lecture. नेक्स्ट इज इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर क्या होता है? सिंपली आप एक कॉलम नेम बताते हैं, इन कंडीशन लगाते हैं और कुछ वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं कि आपके कॉलम नेम की वैल्यू इन 3 वैल्यूज में से उठाना चाहता हूं मैं। जैसे कि सिटी होता है, मैं कहता हूं कि भाई इन 3 सिटीज में से ही आपकी वैल्यू होनी चाहिए, तो मैं बोल देता हूं वेयर सिटी इन कपूरथला कॉमा जलंधर कॉमा लुधियाना। यानी मैं ये बता रहा हूं कि आपकी वैल्यू इन 3 वैल्यूज में से ही एक होनी चाहिए। जैसा कि आप नीचे एग्जांपल देख सकते हैं कि मैं सभी कॉलम्स को, सभी एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट करना चाहता हूं फ्रॉम एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन वेयर सिटी इन। सिटी की वैल्यू इन तीनों में से एक होनी चाहिए, या मुंबई या बैंगलोर या हैदराबाद। सो दैट इज इन। The next operator is exists. Exist operator is used to test if a record exists or not. ठीक है, तो इसमें कंडीशन ही ऐसी है कि वो किसी वैल्यू की नहीं, वो ये चेक करेगा कि ये वाला रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो वो उसको फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू को उठाएगा। सेलेक्ट कॉलम्स, आप कौन से कॉलम्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं, कौन से टेबल में से सेलेक्ट करना चाहते हैं, वेयर एग्जिस्ट्स। अब मैं एक कंडीशन लगा रहा हूं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी देन इट विल सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग टेबल्स, यानी डबल सिलेक्शन हो रही है यहां पर। सेलेक्ट एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। मुझे क्या सेलेक्ट करना है? मुझे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर सेलेक्ट करने हैं, नेम सेलेक्ट करने हैं। कहाँ से सेलेक्ट करने हैं? मुझे सेलेक्ट करने हैं एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन के बीच में से। वेयर एग्जिस्ट, सिर्फ वही सेलेक्ट करने हैं। वेयर द सेलेक्ट इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर फॉर एम्प्लॉय, वेयर एम्प्लॉय नेम। यहां पर आई हैव टू मेक इट अ लिटिल शॉर्ट so that it is readable. यहाँ पर content is going out of the window. Where employee ID is equal to 5 and city is equal to कुछ नाम यहाँ पर दिया होगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं then those records will be picked up. If the records does not exist they will not be picked up. लेकिन इसमें जो मेरी समझ है, आपको यहाँ पर एग्जिस्ट यूज करने की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है, क्योंकि आप सिंपली एक कंडीशन जो है वो लगा सकते हैं वेयर, यानी ये वाला पार्ट आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ सकती। आप चाहें तो डायरेक्ट कंडीशन भी लगा देंगे तब भी ये काम करेगा। बेसिकली इट इज
testing only if the records exists or not, otherwise it is not going to fetch you any record. ये सिर्फ आपको ये बताएगा कि ये रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं. नेक्स्ट इज ऑल ऑपरेटर. तो हम एक नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ आ गए हैं, विच इज ऑल ऑपरेटर. इट इज यूज्ड विद अ वेयर और हैविंग क्लॉज. कल हमने एक क्लॉज किया था, हैविंग क्लॉज. हैविंग क्लॉज वाज वेरी सिमिलर टू अ वेयर क्लॉज, and a question also came up कि what is the difference between the where clause and having clause. तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि where clause और having clause दोनों एक तरह से ही यूज होते हैं, लेकिन the major difference between the where clause and having clause ये है कि आप where clause को कहीं भी यूज कर सकते हैं, आप वेयर क्लॉज को कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हैविंग क्लॉज को आप सिर्फ वहां यूज कर सकते हैं जहां पर आपने ग्रुप बाय लगाया हो. अगर आपने अपनी सेलेक्ट स्टेटमेंट में ग्रुप बाय नहीं लगाया है तो आप हैविंग क्लॉज यूज नहीं कर सकते हैं. आप हैविंग क्लॉज सिर्फ वहां यूज करेंगे जहां पर आप ग्रुप बाय लगाते हैं. तो चलिए समझते हैं कि ऑल ऑपरेटर क्या है. द ऑल ऑपरेटर इज यूज्ड. आप किसके साथ यूज कर सकते हैं ऑल ऑपरेटर को? वेयर के साथ या हैविंग क्लॉज के साथ. एंड रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द सब क्यूरी वैल्यू मीट्स द कंडीशन. तो इसमें एक क्यूरी लगेगी और एक सब क्यूरी लगेगी. ओके, एक क्यूरी लगेगी, उसके नीचे एक सब क्यूरी लगेगी, और अगर सब क्यूरी रिटर्न्स मीट्स ऑल द कंडीशंस देन ओनली द मेन क्यूरी विल बी रिटर्न. तो ध्यान से देखिए, सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम. हमें कुछ एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट करना है टेबल में से. वेयर कॉलम नेम ऑपरेटर ऑल, यानी कॉलम के ऊपर हमने ऑल ऑपरेटर लगा दिया है. सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन. अगर उस कंडीशन के लिए सारा का सारा वैल्यू ट्रू रिटर्न होगा तभी मेन क्यूरी का वैल्यू रिटर्न होगा, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स. इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दिखाने वाला हूं. आप एग्जांपल पर थोड़ा सा फोकस कीजिए. एवरीथिंग इज नॉट सो इजी. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी. तो सबसे पहले हम हमारी मेन क्यूरी को देखेंगे. सब क्यूरी को नहीं देख रहा हूं मैं, अभी सिर्फ आपकी मेन क्यूरी को देख रहा हूं. मेन क्यूरी क्या कहती है? सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन टेबल. यानी आप किसको सेलेक्ट करना चाहते हैं? एम्प्लॉय नेम एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना चाहते हैं. कौन से टेबल से सिलेक्ट करना चाहते हैं? एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन टेबल से. अब हम एक कंडीशन लगा रहे हैं, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू ऑल. आप कौन से कॉलम नेम के ऊपर ऑल कंडीशन लगा रहे हैं? एम्प्लॉय आईडी पे. अब चेक करते हैं कि कौन सी सब क्यूरी है. सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन वेयर सिटी इज इक्वल टू हैदराबाद. यानी एम्प्लॉय आईडी सिर्फ उसी को पिक करना है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सिटी इज इक्वल टू हैदराबाद. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है फॉर ऑल देन ओनली वी आर गोइंग टू पिक अप, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू पिक अप. सो इट शुड सेटिस्फाई द ऑल क्राइटेरिया. अगर ऑल क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हुआ है तो हम लोग इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे. एनी इज डिफरेंट. Similar to the all operator, the any operator is used with a where or having clause and returns true if any of the subquery meets the condition. पहले हमने क्या किया था? all, मतलब सबको मीट करना है. any में सिर्फ किसी एक सब क्यूरी को कंडीशन को मीट करना है और आपका आंसर आ जाएगा. So that is it. We have done all the operations on the SQL. हमने सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सारे ऑपरेटर्स देखे थे. उसके बाद हमने कंडीशनल देखे, बिटवाइज देखे, और एंड में हमने लॉजिकल भी देखे. अब हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं सम ऑफ द एग्रीगेट फंक्शंस दैट वी कैन यूज विद द SQL क्यूरीज. तो सबसे पहले सबसे बेसिक आपका जो एग्रीगेट फंक्शन है वो है min, विच इज नोन एज द मिनिमम. ये क्या करता है? आपको एक मिनिमम वैल्यू रिटर्न करता है.
मैक्स क्या करता है, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है। काउंट, काउंट मींस आपने कितने रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट किया, ये उसका काउंट बताता है। सम मींस उन सभी सिलेक्टेड वैल्यूज का सम निकाल देगा, एंड एवरेज उन सब का एवरेज निकाल देगा। तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने के लिए नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के साथ आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। Select the minimum value of a particular column from a given table, साथ में where condition, यानी हमने मिनिमम वैल्यू को रिट्रीव करना है फॉर अ गिवन कॉलम नेम, लेकिन सिर्फ उन्हीं कॉलम्स को कंसीडर करना है जो वेयर कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं लगाया है, दैट मीन्स ऑल द रिकॉर्ड्स विल बी कंसिडर्ड। सेलेक्ट मिनिमम, किसका मिनिमम निकालना है, एम्प्लॉय आईडी का, एज स्मॉलेस्ट आईडी, यानी जो भी मिनिमम वैल्यू रिटर्न होगी वो स्मॉलेस्ट आईडी नाम के एक वेरिएबल में सेव हो जाएगी। कौन से टेबल में से, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन टेबल। I repeat, the objective of this select query is to return the minimum value from the employee ID attribute and save the same as in the smallest ID variable. Similarly, max, select the maximum salary, पूरे टेबल में से जिसकी मैक्सिमम सैलरी है उसको सेलेक्ट कीजिए एंड उसको सेव कर लीजिए एज लार्जेस्ट फीस। कौन से टेबल में से, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन टेबल में से। नेक्स्ट इज काउंट, हमने सेलेक्ट करना है काउंट एम्प्लॉय आईडी, बेसिकली कुछ भी नहीं है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन टेबल। ठीक है, ये अब हमने इसमें कोई कंडीशन भी नहीं लगाई है, तो ये सिंपली क्या रिटर्न करेगा, ये सिंपली रिटर्न करेगा हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर इन योर टेबल। नेक्स्ट इज सम, सम क्या करेगा कि जनरली हमने ये देखा कि उसकी सैलरी कितनी है, दूसरे एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है। अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबकी टोटल सैलरी कितनी है, तो आप सिंपली सेलेक्ट सम सैलरी कर सकते हैं, तो आपको सबकी सैलरी पता चल जाएगी। अगर आप उसी सैलरी की एवरेज निकालना चाहते हैं तो आप उसकी एवरेज भी निकाल सकते हैं। इसी के अलावा देयर आर मेनी फंक्शंस दैट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट सर्टेन कंडीशंस विद इन द SQL commands, and keeping in mind that we have taken so many lectures to go through this sheet, it is not possible to continue with all. कुछ पार्ट आपको आपके प्रैक्टिकल सेशंस के लिए खुद पढ़ने चाहिए। These notes are already available with you, so I expect that you are going to do this or read these sheets for yourself, and we will continue with our some other topic in the next lecture when it is there. So if you have any questions, you can please ask me that. I am waiting for your questions.